ମାନେ ବହୁତ ସନ୍ଥଳା ବି थे ବଳିଆ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତିରେ ଯଦି ବଳିଆକୁ ଡାକନ୍ତେ କିମ୍ବା ବଳିଆ ନିଜ ତରଫରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୱେଷ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କୋରାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି, ଉପାସନା କର, ଉପାସ କାହିଁ ରହିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଜଣେ ଯଦି ଉପାସ ରହି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯାକେ କଷ୍ଟଟି ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଉପାସ କଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ପେଟ ପୂରେଇ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉନାହିଁ, ସେ ଲୋକର ଭୋକ ବା ସେ ଲୋକର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା କହିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ମତରେ ଉପାସନା ଠିକ୍, ଉପାସ ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ସଜ୍ଜନ ଶୈତାନ କ'ଣ ମଣିଷ ଶୈତାନ ଗୋଟେ କ'ଣ କେଉଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି? କେଉଁଠି ଥିବେ ସେ କଥା ବଳିଆ ଦେଖିନି। ଶୈତାନ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମରି ମଣିଷ ଭିତରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସତ କଥାଟାକୁ କହୁଛି। ଜଣଙ୍କର କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା, ତେଣୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଗଲା, କିଡନୀଟି କିଏ ଦେବ? ତାର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ କିଡନୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କଲା। ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ କିଡନୀରେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଚାଲିଗଲା। ମା ଅଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ଭାଇ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଉଣୀ ଭାବିଲା ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯୋଗା ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ଦେବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଉଣୀ ଯାଇ ରହିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଇଏ ଘରଟା ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିଲି, ଏଇ ଘରଟା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ଆଉ ସେଇ ଘରେ ସିଏ ରହିଲା ଏବଂ କହିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ଇଏ କାଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରୀତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଜନ୍ମ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତି, ଏଇ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି। ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ମାଟି ସେ ଝିଅ ଘରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଘରର ପୁଅର ଯେଉଁ ଘରଟା ଥିଲା, ଝିଅ ସେଇ ଘରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାଟି ଯାଇ ସେଠି ରହିଲା।
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ କୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ କି ଝିଅ ବି ମାଆ କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ମାଆ ବି ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ହେଲା। ଇଏ କାଳେ ମା ଝିଅର ମମତା। ମାତୃଭୂମି ଭାରତର ଇଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। କେମିତି ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସେ ମାର ପୁଅଟି ରହିଲା, ସିଏ ପୁଅଟି ପାଖରେ ମା ବି ରହିଲା। ସିଏ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଡାକେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତା ବଡ଼ ଭାଇଟି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଯୋଉ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ଭୋଗ କରିବ। ଇଏ କାଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଜ୍ୟର ଭାରତ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଭାରତ। ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏଇଆ ଅବସ୍ଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛି ରାମ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାଟି ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଠି ମା ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ବି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଟି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ମାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଅ। ମା ଯାଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍, ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି କୂଅରୁ କାଢ଼ିକିରି ଦେଇପାରିବିନି। ମାର ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଔଷଧରେ, ତମେ ସେ ଔଷଧଟା ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ। ଏମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମାକୁ ଏଇମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଏବେ ରହିବ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇମାନେ ଔଷଧ ଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସବୁ ଦେବେ, ଯତ୍ନ ବି କରିବେ। ସେଇ ମା ଦିନେ ଝିଅର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ଝିଅଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପୁଣି ସାନ ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ପରିବାର, ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ବଡ଼ ପୁଅର ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏଇ ବଡ଼ ପୁଅର ପରିବାର ଥିଲା ମାର ଶତ୍ରୁ। ମୋର ସାନ ପୁଅ ଭଲ, ମୋର ଝିଅ ଭଲ। ଏ ପବିତ୍ର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ କରନା। ମା ମମତାମୟୀ, ସଦାମୟୀ। ଏଭଳି ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଏଭଳି ମମତା ଦିଅ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତମକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଏଇଭଳି ପକ୍ଷପାତ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଶୈତାନର କଥା। ଆଉ ଶୈତାନ ଆମରି ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। କୋଉ ରୂପରେ? କାମ ରୂପରେ ରହିଛି, କୋଉଠି କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ରହିଛି, କୋଉଠି ଲୋଭ ରୂପରେ ରହିଛି, କୋଉଠି ଈର୍ଷା ରୂପରେ ରହିଛି। ଏଇ ଶୈତାନ ମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୈତାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ। ବାୟାଙ୍କ ବାଣୀ
जड़े स्त्री लोक आसी ताको पुओ बेमार आउ झील परीक्षा देवा कथा कहले युवाक समस्ते पचारती सी पचारुंट पुअर बेमार कथा बाबा तांको औषध न बतई कि डाक्तरखाना को जा बोली न कही झील परीक्षा देवा कथा कहते इलो माँ तू पाठ पढ़नु परीक्षा देव मत बाया को कौन कहतु बाबा कौन देले उत्तर विष्णु माया को सत्य बाबा कहले धन जन जीवन यौवन एक रे धन दुई रे जन तीन रे जीवन चार रे यौवन ये चारिटा हूँ पानी फटका पड़ी माने वाटर बबल बोल जा कह जाए पानी फटका हम सागे सागे मिल धन जीवन जीवन धन जन जीवन यौवन क्षुद्र सुख पाई आमे केते पाप करूथाई ये पर्यंत औषध कथा कही ना कि पाठ पढ़िया कथा भी कही ना जेते बेले जहा घटुची ताकू निजर भाग्य बोली भाबी सेतिरे संतुष्ट रही पारिले गोटिए जन्मरे पूर्णता लाभ हो माने कर्म त्याग करिवनी किंतु जहा घटुची धरा जाऊ तमें बीड़ी खाओ ना सिगरेट पिओ ना सिगरेट कौन सिगरेट पियंती बोले तो कहती हाँ सिगरेट टाणती अच्छा तुम्हें मद्य मादक किसी तुम अभ्यास नहीं किंतु तुमको गोटे असाध्य बेमारी धरला यह निश्चित होची भाग्य भाग्य विरुद्ध भी संग्राम करिवो औषध खाइबो साधु संग करिवो ये कथा को मना करा जाउनी किंतु यह कौन बोली कह जड़े मद पीला ता लिवर डैमेज है से मद जमा पीएनी ता लिवर भी डैमेज हो तो सीटा हूँ भाग्य एतिक संतुष्ट रहा पड़ो यार अर्थ ये जन्म आउ क्रियमाण रही क्रियमाण माने कर्म ये जन्म क्रियमाण रहिबो नाही ये कथा प्रकृत रे बलिया ग्रहण करि पारु नाही ये जन्म रे जदि भल काम करिवो मु बाबा बायांकु स्मरण करी कहूची ये जन्म रे जदि आमे भल काम करिबा सेई बेमार रे पड़ी आमे जदि भल कार्य करिथिबा ताहले निश्चित भाव रे दुर्भाग्य किछि अंश रे प्रशमित हब बिहार डालमिया जने धनी लोक बुद्ध गया पाखरे तांकर घर गया गया जिले तांको घर बोध गया से जगन्नाथ मंदिर करिसंती बलिया तांको घर को जाइथिला से निमंत्रण करथिले तांको घरे अखंड नाम सब चली तांको घरे सबुदिन ब्राह्मण वैष्णव सेवा चली तांको असाध्य रोग होईची जगन्नाथ मंदिर करिसंती जगन्नाथ मंदिर रे जो अतिथि अभ्यागत माने पहुँचे से माने मागणा खाइबे महोत्सव हम यह सत्य भी तांको गोटे रोग धरी रोग धरी थिले भी तांको मनरे टिके दुख नहीं कि कुंठा नहीं आमे पहुँचलु
आम सांगरे जेते लोक जाइथिले समस्त को वस्त्र देले दक्षिणा देले एवं बलिया को पूजा मध्य कले जाए पूजा कले जो रूप दीप दे ये पूजा कले एवं निरोला निर्जन घरे मते बसई पचारिले बाबा किसी जगन्नाथ मंदिर कली किसी भूल भाल रही कि वो जगन्नाथ मंदिर उद्धार कले माने हेटा पुराना मंदिर हो जाइथिला हेटा पुण्य हला ना भूल भाल कहीं हम शेष ये दुनिया से विदाय नेले तेणु क्रियमाण कहले भूल काम जीवन में रहिबो नाही ठीक काम करिया को पड़िबो जितेबले प्रारब्ध भोग हो शेष मनीष मुक्ति पाइब संसार रे सुख समृद्धि सीमा नहीं बयस जेते बढ़ुथिबो आशा सेते बलवर्ती हेउथिबो तेणु सज्जन एठी बाबा कहउचंती संसार रे सुख समृद्धि सीमा नहीं इटा ठीक बयस जेते बढ़ुथिबो आशा सेते बलवर्ती हेउथिबो ना ये कथाटा मध्य ठीक नुहे बयस जेते बढ़ुथिबो निजर आत्म समीक्षा सेतिकी बढ़ुथिबो मोर भूल कोउटी रहउची ताकू आमको समीक्षा करिया को पड़िबो हमर जीवन रे भूल केते ठीक केते ताकू हिसाब करिया को पड़िबो आम जशवंत दास लिखिचंती पंचसखा जुगर जशवंत दास से कौन लिखिले चतुर्थ बयस आसी हेला तोहरी अवश्य देखी दुही बयस तोहरी अवश्य देखी कहती जशोवंत तू सेवा कर कहती जशोवंत गुरु को बसिब बई को कहारी तेणु आम भीम भई सेमती गोटे भजन लिखि तेणु से जाओ गोटे तो बोलिली आउ से गोटे है तेणु जेते बयस बढ़ुथिबो आत्म समीक्षा सेतिकी करिवो बाया को उद्देश्य रे काहाको को उत्तर देले बलिया तो कहि परिबनी किंतु लेखाटी की देखिली तारी भितर मो भितर जो भाव सृष्टि हला मु आपण मानू कहली आ बाया गोटे कहले भागवत पद परम सुख बैराग आशा परम दुख जोग आशा तामाने आशा करवानी आम केमती कौन करिया भोक कला गोटे खाया इच्छा करवानी घर खंडे करवानी गाड़ी गोटे करवानी
ନା କୋଉ ଆଶା ବୃଥା ଆଶା ଅନେସେସରି ଡିଜାୟାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ହିଁ ସଂଯମ କଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ ଆଉ ଏ ବାୟାତ କହିସାରିଲେଣି ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇବ ଏ ଧୃତି ଚାତକ ବୈକୁଣ୍ଠ ତୃଷ୍ଣା ଜୀବ ए धृति वैकुंठ तृष्णा से परे से रूह से रूह परे मन को जितेबले से भगवत मूर्ति आम आखि आगे नाची उठिब जितेबले सद्गुरुंकर श्रीमूर्ति आम आखि आगे नाची उठिब इष्ट मूर्ति नाची उठिब आउ सबु गुड़ाक चलीज सबु तृष्णा आउ किछि रहिबनी आउ तेणु हे मनीष दुख तो आसब रोग तो आसब निंदा तो आसब अपमान तो आसब इथिरे विचलित न होई ना विचलित हवाको ही पड़िब तथापि तारी भितरे आमको इष्टमूर्ति गुरुमूर्ति शास्त्र कथा को नहीं आमको चलने को पड़िब आने जदि जीवा नहीं आखर कौन मकदमा करवा ये आई कौन कर सबुठे धैर्य दरकार एवं कृपा भी दरकार। मधु कहले मधु कहे से मधुर पाई अच्छी जे नर होई गले से ही बेल हुए से ही बेल मधु कहे से मधुर को मधुर जा कृष्ण रस प्रमोद मधुरा सामाधुरी माधुरी जिते महु अच्छी दुनिया रे जिते मिठा जिनिस अच्छी हरि नाम हरि कीर्तन ध्यान योग आसन प्राणायाम नाम कीर्तन शास्त्र अध्ययन सत्संग ये हूँ गोटे स्वतंत्र मधुरर कथा सबू कथा चलथिबो जंजाल भितर थिबो काम करूथिबो पुओ झियो कथा बुझुथिबो बाप माँ का कथा बुझुथिबो निज देह यदि खराब होउथिबो तापई औषध खाउथिबो सबू चलीथिबो तारी भितर ये कथाटा भी चलिबो ये मधुर जदि न रहिबो तार सेटा आउरी बड़तर हो तेणु से मधु कहले जे होई गले से बेल हुए अधीर जेतेबेले तमे तांको पई अधीर होई उठिबो सेतेबेले से मधुर को प्रकृत चाकिबो। अभिनय सुंदर कहले ये गोटे तत्व मार्गर कथा खाली पढ़ी रोची याकू एटा गोटे ट्रेनिंग या पे दरकार तेणु से ट्रेनिंग टा तो ये नहीं हेनी खाली महापुरुष लेखनीटा टी आम कान बाजिब जिह्वा लेउटाई कंठरे जेही पारई बांधी
ତଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ଆଉ ନ ଦେ ଜିୱାଲେ ये जो जीभटा ये जीभटा जेतबेले तालुका भीतर जो जीभटा अच्छी छोट जीभ बोली जहाँ कह ये जीभ जाई से जीभर जेतबेले एमटी जोग हो एमती किछि दिन जोग कले ता भितर गोटे अमृत झर गोटे लाल झर जो लालर नाम होची मकरंद ये मकरंद एथिरे अनेक रोग भी नाश हब एवं से मकरंद पान करी जीवन धन्य हब तेणु जो माने गुरु करिसंती गुरु को पचारिक ये जोगटा को शिखिबे मन को मन सेमती करिले भूल भाल हो जिवो पुणी अड़ुआ हो भागवत रे कहगला गोविंद गोविंद पदु राजा रघु का मंदिर बनाया था ऐसा क्या माने रघु रघुवंश राम मंदिर और दो बड़ा नर्मदा मंदिर ना ये जो तावा और नर्मदा का बीच में जो मंदिर है शिव मंदिर उसको राजा रघु बनाया था हमको मालूम नहीं दो बार हम वहाँ पर उसी समय में हो ये सब आश्रम नहीं हो किंतु हर साल में नर्मदा जी को दर्शन के लिए हर साल नहीं इसी ग्राम में हमारा कोई संबंध नहीं था ये तो 10 साल की तो कितना साल पहले से मैंने 2-3 बार हमको नर्मदा जी सपन में वो दर्शन दिए किंतु हमको मालूम नहीं था नर्मदा जी कहाँ पर है हमारा एक टाइम आ गया एक भोपाल में एक प्रोग्राम हमारा था किंतु प्रोग्राम होने का बाद होने का पहले जो आदमी को हमको निमंत्रण किया था ये आदमी उड़ीसा से भोपाल नहीं आ पाया इसीलिए 2 दिन हमको इंतज़ार करना पड़ा ये जो स्थान में हम था से अवश्य स्थान है लेकिन मंदिर फंदिर से हो गया सुबह सुबह हम सुना था नर्मदा जी की जय नर्मदा जी की जय नर्मदे हार हाँ नर्मदे हार हाँ तो बाबा जी वहाँ पर था ये बाबा जी को हम पूछा था ये बाबा जी को भी मर्डर कर दिया ये साधन भजन किया था अच्छा बाबा जी अच्छा है आदमी का सब ये बाबा जी को हम पूछा था ये क्या कहता है ना नर्मदा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर कहाँ पर है ना आप तो नर्मदे का नर्मदे का पास में है ये तो यहाँ पर यही मैंने थोड़ी दूर में नर्मदा जी हमारा याद आ गया तो अनेक दिन अनेक वर्ष पहले
हम नर्मदा जी हमको दर्शन दिया था। हम जाकर नहा के माता जी को प्रणाम करके संकल्प लेकर आया था यहाँ पर कुछ कुटिया होगा। ये सब नर्मदा सामने तो है, सामने आया होगा भोपाल से। जो पुलिया है, पुलिया ये पुलिया तो बात हाँ हाँ हाँ, करूँगा। अच्छा, 7 किलोमीटर इस तरह पारादीप बंदर है, पारादीप पोर्ट, पारादीप बंदर का समुद्र के कटक से 60 किलोमीटर समुद्र तक समुद्र का पास है। फिर भी है मैंने थोड़ी दूर में नहीं, ज़्यादा दूर में पारा मैंने बंगोपसागर का तट में हिमाचल में ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी में भी है। हम हिमाचल लोग ऐसे उदासीन परंपरा से जुड़े हैं। हम लोग तो काफी बुजुर्ग हो गए। हम है है 96, 97 है।